Hello student, a very good day to all of you. Now the pandemic situation will be goes on, so you have to stay at home and be safe. Also take your healthy food. So today we will start our topic, that is the periodic trends in valency, oxidation number and some chemical reactivity also, from chapter classification of elements and periodicity in the properties. So let's start to the first topic, that is the valency. व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी हम किसको बोलेंगे? जो भी एलिमेंट्स का कैपेसिटी होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का या फिर लॉस करने का टू फॉर्म ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is shown as the valency. For examples, if I am taking the examples of oxygen, where the atomic number is 8 and it has 8 electrons in its outer shell, where the K cell contains 2 electrons and the L cell contains 6 electrons. To form a stable electronic configuration, oxygen has the tendency or the capacity to gain 2 electrons to form the stable electronic configuration, that is the 2-8. For a stable electronic configuration, the last orbital or you can say the last cell must be fulfilled. So the oxygen atom has the capacity to gain 2 electrons to form a stable electronic configuration. So the valency of oxygen is -2, where the minus sign determines the gain of electrons, and if any atoms or elements contain positive sign, that means they have the tendency to form electropositives and to lose electron. Here I am giving examples of ammonia, where nitrogen has the valency 3 because it has the tendency to gain 3 electrons to participate in the combining of hydrogen in case of ammonia. When the nitrogen atom in ammonia, it has the capacity to share its 3 electrons with the 3 hydrogen atom, and it will be form a compound, that is the ammonia. If I am saying about the PCl5, where the phosphorus has 5 electrons in its outer shell, and all the 5 electrons has the tendency to share the electrons, and so the valency is 5. If I am taking examples of PCl3, where the phosphorus has also tendency to gain 3 electrons, so the valency in case of PCl3 will be 3. If I am saying about the period and group, or you can say the variation of group and period, in case of group, mainly the S and P block group, the valency remains same because the same valence cell, or you can say the electronic configuration, that will be entered on the same cell, and the last electrons will be constant on respectively group. For example, if I am saying about the group 1, where the general electronic configuration is ns1 and the last electrons will be entered to the last subcell and the number of electrons will be 1, means that has the tendency to lose 1 electron to form a stable electronic configuration, where the valency is 1 plus 1 in case of group 1. If I am saying about the group 2, where it has the tendency to lose 2 electrons to form a stable electronic configuration, that's why the valency is +2. But if I am saying about the period, when it will be comes in a period, then the valency will be first increases from 1 to 4 and then it will be decreases to 0. But if I am taking with respect to oxygen, अगर ऑक्सीजन के हिसाब से हम चलेंगे तो वैलेंसी क्या होगा? पहले बच्चों 1 से 7 तक इंक्रीज करते जाएगा, वहाँ से 0 आ जाएगा फॉर नोबल गैसेस. एज यू नो ऑल द नोबल गैसेस हैव द 0 वैलेंसी. पहले क्या होगा? 1 से 7 तक इंक्रीज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. बट इफ वी टेक विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और क्लोरीन, then it will be first increases 1 to 4 and then it will be decrease 3 to 1 and 0. So in this way the periodic trends of valence will be goes on. Now comes to the second topic, that is the periodic trends in terms of oxidation state. What is oxidation state?
how this will be calculated? An oxidation state is known as the oxidation number, that will be determined as a number in which the elements must have the capacity to express in their oxidation state is known as oxidation number. When we are saying about the oxidation number, that somehow equals to valency, but that not actually equals to valency, but it depends upon the number of electrons gain or loss. So in this way we will somehow it will be equals to valency. When we are saying about any monoatomic ion, अगर कोई आयन है जो कि मोनोएटॉमिक फॉर्मेशन में है, फॉर एग्जांपल्स मैग्नीशियम 2+, Mg2+, इसका मतलब क्या है, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. हियर आई एम गिविंग वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल, सोडियम प्लस हो गया या फिर कैल्शियम 2+ हो गया या फिर Cl- आयन्स हो गया। इस सारे आयन्स के ऊपर जितने भी नंबर सब लिखा होता है वो सारे हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई बाइनरी कंपाउंड्स आ गया तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहाँ पे जो हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा उस और एलिमेंट्स होगा उसको हम पॉजिटिव साइन से डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं वाटर का एग्जाम्पल्स लिखी हूँ जहाँ पर कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन. So oxygen, as you know, oxygen in the valency it requires 2 electrons to form a stable electronic configuration. In this way, here is also the oxygen has the tendency to accept 2 electrons, so it will be determined as -2, where the hydrogen is lesser electronegative elements and it will be shown in positive oxidation state where it has the tendency to lose its 1 electron. So that's why the oxidation number, or you can say the oxidation state, is +1. In this way the various type of periodic state or periodic numbers will be calculated, but it will be briefly elaborated in your S and P block elements, and in the higher order also is also presence in your 12th class. So will be goes on with time, and also you will study about our oxidation state, how it will be calculated and how it will be determined. It also contains in your states of matter chapter, तो वहाँ से भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट कम्स टू द एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स. एनामलस का मतलब है यूनिक. सेकेंड पीरियड हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है उसमें क्या ऐसे यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कि वो अलग वो अदर एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट है, हटके है. क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेकेंड पीरियड में जितना भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप. उनके ग्रुप में वो सारे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है. मेनली हम जो एलिमेंट्स के बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड का, दैट एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू कौन कौन सा ब्लॉक से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक का होता है, ठीक है. एस ब्लॉक में हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड पीरियड विथ लिथियम एंड एंडिंग विथ द नियन. बस लिथियम जो जिसके ऊपर की एक हाइड्रोजन है और नियन जिसके ऊपर के एक हीलियम है. इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़कर बीच में जितना भी एलिमेंट्स है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑल द एलिमेंट्स आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप. उनके ग्रुप में वो सारे फर्स्ट मेंबर्स है, तो उनके पास बहुत सारे बच्चों डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से उनको हम एनामलस और यूनिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं. फर्स्ट वन इज दे आर द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज इन देयर ग्रुप. उनके ग्रुप में वो क्या है, सबसे छोटा साइज है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू देयर ग्रुप उनका हाई है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो हाई. और इसका एक लास्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एंटर टू द 2s and 2p orbitals which will be available for bonding and cannot show a covalency. इन यहाँ पे जितना भी बच्चों एलिमेंट्स होते हैं वो अपना कोवेलेंसी शो नहीं करते. मोर देन 4 इन इट्स कंपाउंड, वहाँ से 4 से ज़्यादा भी कोई कोवेलेंसी नहीं है. Next comes to the some chemical reactivities.
सॉरी, नेक्स्ट कम्स टू द डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? हमारा जो एस और पी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट्स जो कि यूनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है सेकेंड और थर्ड पीरियड का। सेकेंड और थर्ड पीरियड में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो कि जिसका अगर डायगोनली उसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उन लोगों का प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। तो वो कैसे सिमिलर होते हैं, चले देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का कुछ एलिमेंट्स है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, जो कि लिथियम एंड बेरिलियम इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एंड बोरोन एंड कार्बन विल बी बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक, where the sodium magnesium will be from S block and aluminum and silicon will be from हमारा P ब्लॉक से। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायगोनली चेक करें, मतलब लिथियम के साथ मैग्नीशियम, बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम एंड बोरोन के साथ सिलिकॉन, ये इन लोगों का, इन तीन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो कि सिमिलर होता है थर्ड पीरियड का इन तीनों एलिमेंट्स के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में? क्योंकि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ओपोज कर रहा है। ओपोज का मतलब क्या है कि हाँ, हम लोगों को मालूम है कि पीरियड में क्या होता है, ये एक पीरियड है, पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases. Here the same rule is also applied for the third period. The atomic size will be decreases, but all the electronegativity, electron gain enthalpy and the ionization energy will be increases. But if we are saying about the diagonal relationship, here the lithium and magnesium, इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स का इक्वल्स हो जा रहा है, जिसके वजह से कि ये दोनों का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जिसके वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो ये हो गया व्हाट आर द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट कम्स टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटीज़। मतलब ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शंस है जहाँ पर कि हम लोगों को इसको कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम होना चाहिए कि मेटालिक कैरेक्टर कौन सा शो कर रहा है, नॉन मेटालिक कौन सा शो कर रहा है, उनका वेरिएशन क्या है हमारे पीरियड और ग्रुप में। तो जैसे कि तुम लोगों को मालूम है बच्चों, जो भी हमारा मेटालिक प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, मेटल शो करता है। ठीक है, एंड ऑल द मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। इसका मतलब है राइट साइड में जितना है वह हमारा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंक्रीज करेगा, सॉरी मेटालिक प्रॉपर्टीज विल बी decreases along the period, whereas metallic properties will be increases on the group। ग्रुप में जब आएंगे हम बच्चों, वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर हम नॉन मेटालिक्स की बात करेंगे तो एज यू नो द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड बच्चों हमारा हमेशा इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड ऑल द नॉन मेटल will be so on the right hand side of the periodic table. If we come to the group, and then along the group the non-metallic properties usually बच्चों decreases। ठीक है, so let's come to the second topic, that is the reducing and oxidizing character। मेनली बच्चों जितना भी हमारा मेटल्स होता है which has the tendency to reducing agents, मतलब वहाँ पे क्या होता है दे आर ऑल पार्टिसिपेंट इन द रिडक्शन। तो वहाँ पे जितना भी मेटल्स होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो वहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है इन केस ऑफ मेटल्स, बट व्हेन वी कम टू द नॉन मेटल्स उसका टेंडेंसी होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हिसाब से काम करे, जिसके वजह से दैट द ऑल द नॉन मेटल्स आर बी बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। सो लेट्स कम टू द ग्रुप एंड पीरियड। तो पीरियड में बच्चों जैसे कि तुम लोगों को मैं बोली कि मेटल के पास रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो ग्रुप में बच्चों रिड्यूसिंग कैपेसिटी, सॉरी पीरियड में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है हमारा कम होते जाएगा या फिर डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो नॉन मेटल्स थे तो वहाँ पे डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस along the period. When we will come to the group, as you know along the group
क्या होता है वहाँ पे, जितना भी मेटाल्स होता है उसका मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है. तो reducing character will be increases along the group where the oxidizing character will be decreases. In this way the oxidizing and reducing character will be goes on. If we come to the nature of the oxides, nature of the oxides का मतलब क्या है, अगर वो oxides कोई भी oxide ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में पीरियड्स में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा. ऑक्साइड्स क्या होता है बच्चों, जो हमारा ऑक्साइड्स होते हैं मतलब ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स यूजुअली आर बाइनरी कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एटम्स. एंड मेनली बच्चों द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, जो कि हमारा बेसिक होता है, जो कि वाटर के साथ डिजल्व करने से वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होकर बेस फॉर्मेशन करता है. एंड जितना भी हमारा नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स ऑफ द ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर. ठीक है, जिसको कि वाटर के साथ डिजल्व करने से वो एसिड कैरेक्टर शो करता है. So in this way if we say about the period and the group, in case of period the basic character जो कि हमारा metals का basic character होता है by the combination of the oxides, but क्योंकि group सॉरी period में हमारा metallic character decrease हो रहा है, तो यहाँ पे basic character भी decrease होगा, and the non metals है the higher acidic character, so यहाँ पे periods में basic acidic character will be increases. And in the reverse process we will come to the group where the group has the higher metals on along the group the metallic character increases, so the basic strength also increases, and along the group the acidic character, or you can say the acidic strength, decreases due to the decreasing non-metallic characteristic. In this way the periodic trends of all the physical and chemical properties will be finished. So thank you.